A very pleasant good afternoon / good evening to everybody to this most awaited session on Behind the Badge, Enforcements and Encounters. And it is indeed a pleasure and a privilege to be here. I would like to begin by recalling the words of the legendary British filmmaker, Alfred Hitchcock, who is the master storyteller and the master of suspense. He said, and I quote, "I am not against the police. I'm just afraid of them." Now, my experience has been somewhat different, having been in touch with Ashok ji and now Amit Lodha ji also. And also, I was investigating a series of murders in which I interviewed a number of inspectors who were the principal investigators. And I was so pleasantly surprised to find that all 8, 9 of those principal investigators, they were so committed to their work. And some of them even, they couldn't sleep because they were thinking about who had committed the murder. And I had shared this with my daughter, that I came across these police inspectors who were so committed. And this is contrary to the words of Alfred Hitchcock. And I find that somehow the words of Alfred Hitchcock does resonate with the Indian public at large, because the perception of the Indian public is that they need to be afraid of the police. And my question is, I will begin on this rather serious note, that what is the genesis of the fact that we are afraid of the police, the public at large? We do not want to approach them, and rather we want to stay away from them. And I put this very important question to Ashok ji. Ashok ji has done a lot to reduce this perception in the minds of the public. But the problem is that we are talking at the national level. National level में ये जो perception है, ये क्यों है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? That is the burning question of the day, I feel. देखिए, इस परसेप्शन के बहुत सारे कारण हैं. सबसे पहला और बड़ा कारण है इंडियन पुलिस की ब्रिटिश लीगेसी. जो प्रेजेंट पुलिस है, हम लोग जो ब्रिटिश डेज की पुलिस है, उसी को हमने इनहेरिट किया है. तो ब्रिटिश डेज में पुलिस का यूज किस लिए होता था? सोच के देखें. पुलिस का यूज होता था टू हेल्प द गवर्नमेंट कलेक्ट रेवेन्यू. सबसे पहला, क्योंकि जो ज़मीनें पट्टे पे दी जाती थी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करना होता. दैट्स वाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. सो ही वाज कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू. वो रेवेन्यू कलेक्ट करने में जहाँ से नहीं होगा तो दे विल यूज द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द स्टेट, एंड दैट्स द पुलिस. तो पुलिस को यूज करेंगे. फिर फ्रीडम स्ट्रगल आया. फ्रीडम स्ट्रगल को आपको अगर वो क्रश करना है तो किसको यूज करेंगे? फिर पुलिस को यूज करेंगे. सो वी हैव दैट लीगेसी वेयर पुलिस इज नॉट सीन एज ए फ्रेंड, पुलिस इज नॉट सीन एज ए हेल्पर, वेयर पुलिस इज सीन as on the side of the tormentor. So that is our legacy. Now in our National Police Academy also we are taught कि कैसे इस legacy से बाहर आना है, कैसे पुलिस की इस image को और better करना है. So police should be respected, police should be everyone should be happy once the police comes. But as you said कि police is odd, डर लगता है पुलिस को देख के, तो ये कहीं ना कहीं गलत है. तो पहला मैंने कारण बताया ब्रिटिश लीगेसी. दूसरा कारण मैं कहूँगा नेचर ऑफ आवर जॉब. जो नेचर ऑफ आवर जॉब है ना, वो ही ऐसी है. एनफोर्समेंट किसी को पसंद नहीं आता. घर में आप पेरेंट्स डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चे को तो एनफोर्स पसंद नहीं आता. स्कूल में टीचर सिखाते हैं, उन्हें भी पसंद नहीं आता. तो सोसाइटी को कौन सिखाता है डिसिप्लिन? पुलिस सिखाती है. ट्रैफिक लॉज हो या दूसरे इंडियन पुलिस एक्ट हो या इंडियन जितना पेनल कोड हो, सबके सबको लागू कौन करता है? पुलिस करते हैं. इसलिए उसको लागू करना किसी को पसंद नहीं आता. तो कहीं ना कहीं वो एक इसका सेकंड कारण है कि हम लोगों को डिसिप्लिन सिखाते हैं और डिसिप्लिन करना पसंद नहीं आता. थर्ड और सबसे बड़ा कारण जो ये इतने 75 साल से चले आ रहा है, 70 साल प्लस से, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी मूवीज का रोल रहा है. जो मैंने कल भी अपने सेशन में बोला, कल भी मैंने अपने सेशन में बोला कि समहाउ इंडियन सिनेमा बिफोर आई वुड से 2010, जब ये दबंग और दूसरी कौन सी थी, सिंघम और इस तरह की मूवीज आना शुरू हुई, उससे पहले वी हैड ओनली दैट वन अर्ध सत्य. बाकी हमेशा पुलिस वाले को नेगेटिव रोल में दिखाएंगे, हमेशा पुलिस वाला लास्ट में आएगा. क्योंकि पहले आ गया तो फिर हीरो क्या करेगा?
हैं? हैं? तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये हमारी लीगेसी है और जो कुछ हमारा रोल ऐसा है, और तीसरा जो हमारी इमेज बनी है। आई वुड से कि इन तीनों चीज़ों में चेंज आया है पुलिस के उसमें, स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना डेज और ट्रस्ट quotient has increased from 30% to 90%, and we just hope that it will continue. I'll add something more to it, sir. I spoke about it yesterday also. I hope the same audience is not sitting here. But yesterday I talked about when you go abroad, you see a lot of policemen addressing you as sir or ma'am. Can I help you? Can I do something for you? But India, I also wish there's a day when officers call the general public as sir, ma'am. But are the citizens equally responsible? Are they deserving to be called sirs and ma'ams? Because the moment we see any person gets a chance, he'll flout all the possible rules. The moment there's no traffic policeman at duty, even if the signal is red, I've seen so many people will cross the light. In case there's nobody seeing you around, you'll throw litter anywhere around. There's so many things. Don't follow the queue system here. So ultimately, we need somebody, even during Corona, we needed the police to be on the roads to make sure that people go inside their houses. In spite of people being very well aware that it was a very dangerous pandemic. So that way, we as citizens also are equally responsible for the police to be stern and tough in our country. And as I told yesterday, also the police is a reflection of the society. If you are soft and sweet or innocent, sensitive, a lot of people don't like. You know, policemen, younger officers particularly today, they like to be called as dabangs or super cops or singams. But in reality, policemen are like me and Ashok sir. Normal people from normal backgrounds who are just putting on a uniform, which entrusts them with a lot of power to make a positive difference to the people, to the society. But we associate the police uniform with power, glamour, a lot of pelf. So this is what also the people need to change in their mindset. We are there to serve them, but they also need to evolve as citizens. And I'm very sure that our country is slowly going towards in that direction. Absolutely right, Amit, and Ashok ji has very nicely explained. And this brings me to another thing which occurs to me, which is the fact that there is something in the DNA of Indians where we take pride in flouting the rules. If we manage to break the law or break the rules, we think we are very smart and we are very clever. This is in our DNA, I am sorry to say. I have been in many countries and I find that they follow the law whether somebody is watching or not. But we think we are very smart if we break the law. So in this context, I would like to bring in Amit Dubey into the conversation. Amit, you have trained 1.5 lakh police personnel. So would you like to add to this? What is your take? Actually, even after such a mammoth training, मैं जब क्योंकि ट्रेनिंग 2 घंटे की होगी, 2 दिन की होगी, 2 दिन में आप बहुत चीज़ चेंज नहीं कर सकते. लेकिन जब मेरे पास रिक्वेस्ट आती है उनसे कि सर ये ड्राफ्ट करना है, नोटिस ड्राफ्ट करना है या इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा, उससे समझ में आता है कि दे आर ओवर ऑक्यूपाइड ऑलवेज. और मेरी जो एंगेजमेंट है वो साइबर क्राइम को लेकर ज़्यादा होती है. साइबर क्राइम चूँकि यहाँ पर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, एक लाइन में सबसे पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोग हैं जो डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं? ये देखिए, खड़े हो गए हाथ. आप में से कितने लोग हैं जो VPN यूज़ करते हैं? ये देखिए. आप में से कितने लोग हैं जो ऑग यूजर्स यूज़ करते हैं? कुछ हाथ इसमें. ये ऐसी चीज़ें हैं जो आगे 2-3 रो में जो लोग बैठे हैं उनको शायद नहीं पता होंगी. ये सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं. डिस्कॉर्ड व्हाट्सएप का बाप है. और जो चीज़ आप छुपाने के लिए करते हो ना अपनी आइडेंटिटी, डिस्कॉर्ड एनोनिमस चैट कम्युनिकेशन मैसेजिंग सिस्टम है. बच्चों के फ़ोन में याद है तो शर्मा के नहीं उठा रहे. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि इनकी सारी एक्टिविटीज़ डिस्कॉर्ड पे चल रही हैं कि हमें कोई पकड़ ना पाए. और VPN जो आपने कभी यूज़ ना किया होगा, क्योंकि मैं तो हर दिन केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और मुझे 16 साल, 12 साल, 9 साल के बच्चे क्रिमिनल्स मिलते हैं और वो पूरी सिटी को हिला दिया होता है उन्होंने. तो ऐसे केसेस हो रहे हैं. और ये फैक्ट चेक करने के लिए मैंने हाथ उठाया था कि जब ये लोग इतना आगे हैं और पुलिस हमारी अभी भी वही है, तो देयर इज अ बिग गैप. पुलिस छोड़ दीजिए, आपको नहीं पता आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो VPN पर हैं, वो डिस्कॉर्ड पर हैं, वो ऑग यूजर्स क्या है. जितना इलीगल ट्रेडिंग होती है सरफेस वेब पर, डार्क वेब की तो मैं बात नहीं कर रहा, अभी डार्क वेब के बारे में बात करेंगे तो आप लोग डर जाएंगे. सरफेस वेब पर जितनी इलीगल ट्रेडिंग है, कुछ भी आपको इलीगल चाहिए वो ऑग यूजर्स पे मिलता है और ये बच्चे उस पर एक्टिव है. तो ये खतरा है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा सेंसिटाइज करना चाह रहा था. और जिस तरह के केसेस में इन्वेस्टिगेट करता हूँ उसमें हमेशा क्रिमिनल मुझे सिखा रहा होता है. मैं सर से भी शायद बात कर रहा था कल कि क्रिमिनल्स आर इनोवेटर्स,
दे आर ऑलवेज अहेड देन अस। 2011 में मैं फिनलैंड में था, नोकिया के लिए काम करता था। पेरिस पुलिस से कॉल आया कि एक केस है, इन्वेस्टिगेट करना। मैं पहुंच गया पेरिस, वहाँ से मुझे लेकर रेन चले गए। पेरिस के पास में एक सिटी है, 2 घंटे की डिस्टेंस पे। एक लेडी से मिलवाया मुझे, और मुझे बोलती है कि अमित मुझे एक कॉल आया और कॉलर ने मेरे से कहा कि मैंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है, 1 घंटे के अंदर 25,000 यूरो ट्रांसफ़र कीजिए वरना उसको मार देंगे। उसने कहा अरे मेरे अकाउंट में तो 25,000 यूरोज नहीं है, मैं कैसे ट्रांसफ़र कर दूँ। उसने कहा आप मुझे स्मार्ट मत बनिए मेरे सामने, आप जहाँ खड़ी हैं अपने एक बेडरूम में, उसके पीछे एक पेंटिंग है, उसकी कीमत 5 लाख है, चुपचाप ट्रांसफ़र कर दिए वरना बेटी का मुंह नहीं देख पाएंगे। वो घबरा गई, उसको लगा ये क्या हो गया। वो भाग के अपने ड्राइंग रूम में आई, नहीं नहीं यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है। उसने कहा आपके राइट साइड में एक फ्लावर पॉट है, उसकी कीमत $2,000। वो समझी इसने मुझे देख रहा है क्या कर रहा है। उसने अपना लैपटॉप खोला, 25,000 यूरोज ट्रांसफ़र कर दिए। 1 घंटे बाद उसकी बेटी सक्सेसफुल घर आ गई। शी वॉज नॉट किडनैप्ड। पुलिस के पास गई कि यार ये हुआ क्या मेरे संग, मेरे पैसे भी चले गए और बेटी भी किडनैप नहीं हुई थी। तो केस इन्वेस्टिगेट करते करते ये लोग जीरो डाउन किए कि फ़ोन में कुछ गड़बड़ होगी। नोकिया का फ़ोन यूज़ करते थे यूरोप में उस समय, नोकिया शायद आप लोग जानते नहीं होंगे। तो मैं नोकिया N95 का आर्किटेक्ट हूँ। मैं गया, मैंने फ़ोन देखा, उसमें कुछ था नहीं। जब मैं वापस आ रहा था एयरपोर्ट पे तो मैंने देखा एक बच्चा एक गेम खेल रहा है फ़ोन के संग, और ऐसे फ़ोन लेके चल रहा है दीवार के सहारे। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है, मैं उसको बुला इधर आओ। उसने फ़ोन दिखाया तो एक गेम था उसमें, ट्रू फाइटर करके, और उस गेम के अंदर क्या होता था कि कैमरा ऑन हो जाता था और वॉल के अंदर ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट दिखते थे, जो कैप्चर करो तो पॉइंट्स मिलते थे। मैंने उस आयो को बोला, मैंने कहा यार उस लेडी के फ़ोन में गेम था क्या। उसने कहा हाँ सर है। मैंने अपनी फ़्लाइट कैंसिल की, वापस गया, गेम रिवर्स इंजीनियरिंग किया तो पता पड़ा कि लेडी के घर से 150 पिक्चर्स रोमानिया के एक सर्वर पर अपलोड हुई थी थ्रू दैट गेम, जो उसका बच्चा खेलता था। बट उससे बड़ी बात ये थी, जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, कि क्रिमिनल को ये कैसे पता था कि ये लेडी बेडरूम में है या ड्राइंग रूम में है। क्योंकि आज भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इतना प्रिसाइजली किसी को एक्यूरेटली बता देना कि वो उस कोने में खड़ा है या इस कोने में, बहुत मुश्किल है। तो 2011 में वो कैसे कर रहा था, सारे लोगों के लिए सवाल है। डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। जो मुझे जवाब दे देगा उसके लिए मेरे पास स्पेशल गिफ्ट है, मैं आपको बाद में दूंगा। मैं Please continue. रूबी जी थोड़ा इंटरवीन करूंगा। Yes, sir. रूबी जी ने कहा कि ये इंडिया के इंडियंस के डीएनए में है। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, थोड़ा सही भी हो सकता है। हैरी भाई साहब और बहुत सारे लोग बैठे हैं, मस्ट हैव विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम ही इंडियंस जब अमेरिका में होते हैं, कनाडा में होते हैं, यूरोप में होते हैं, तो हम बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। Then we देयर वी become डोंट ब्रेक द लॉज। दैट मीन्स वो हमारे डीएनए में तो नहीं है। प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। यहाँ क्या है, वो स्टेटस का इशू आ जाता है। उनको लगता है अरे ये कांस्टेबल मेरा ट्रैफिक का चालान कर रहा है। भाई वो कांस्टेबल अपनी स्टेटस से उस पर थोड़ा ही कर रहा है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट ही इज सुपीरियर टू द, वो चालान कर रहा है। ही इज ऑथराइजिंग द, ही इज यूजिंग द पावर ऑफ द लॉ। ही इज ऑथराइज्ड बाय द लॉ, बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। तो वो हमें पहचानना होगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो स्टेटस में घुसे रहते हैं, हमको लॉ मानने के बजाय लॉ तोड़ने में ज़्यादा स्टेटस दिखती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और जो उसके डर की बात आई, मैं स्टूडेंट्स बहुत सारे, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप में से कितने लोग हेलमेट अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं और कितने पुलिस के डर से? अभी कोई नहीं बताएगा। सभी लोग ये कि हेलमेट इसलिए पहनना कि कोई पुलिस वाला ना पकड़ ले। अरे भाई वो पुलिस वाले को उससे क्या मतलब, वो तुम्हारी अपनी सुरक्षा है। दैट्स व्हाई द लॉ इज देयर। जबरदस्ती पुलिस को पहना के कौन सा मजा आने वाला है। वेरी ट्रू, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य बताया अमित दुबे ने। नाउ ऑन अ डिफरेंट, ऑन अ लाइटर नोट, कमिंग टू द टॉपिक विच इज बिहाइंड द बैज. All our 3 panelists are IITians. And my experience after having taught engineering students for 16 plus years is that engineering students are the most mischievous. मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक वे से बोल रही हूँ। रियलिटी थोड़ा इससे ज़्यादा है। सो दे आर द मोस्ट मिस्चीवियस। पढ़ाई भी ज़्यादा करते हैं और करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और बियॉन्ड करिकुलर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी वजह से द 3 of our panelists chose engineering. उसके बाद they got into crime, policing. उसके बाद they became a writer. I mean, where will I go? I'm a writer. They are hijacking my profession also. And not only that, both the Amits over here, their bestseller books have been made into very popular web series which we shall be seeing. And Amit Dubey तो और भी step आगे, वो comedy भी कर रहे हैं और radio show भी कर रहे हैं. So I think somewhere it is
the multi-talented brains of the individuals who go into engineering, which allows them to diversify the way they have diversified. And also engineering में इतना pressure होता है, every semester 6 नए subjects, 6 practicals, वो भी करो, everything they keep doing, and that's why I think they are so prolific and so multi-talented. So let's hear from them that who is the man behind the badge. We want to know who are you, Ashok Kumar ji, without your badge. असलियत बताइए अब. I'm a normal human being, like any other human being. That's what I have always felt. बल्कि शुरू में आया तो सर्विस में मुझे लगता था कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया. इसलिए जो मेरी बुक है ह्यूमन इन खाकी, उसमें मैंने लिखा है कि सत्ता के गोल गोल दायरे, इन्हीं पर चलते हैं लोग और चलने की सीख देते हैं लोग. मेरा कहना है कि खाकी वर्दी में रहते हुए भी इंसान बने रहना इतना मुश्किल तो नहीं. तो मैं तो शुरू से अपने को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोचता हूँ. उसी तरह से ही मैंने अपने को शुरू से लिया है. रही आपकी बात कि कैसे IITians टर्न इनटू कॉप्स, ऑथर्स कैसे बन जाते हैं, उसके पीछे सिंपली द मेन रीजन इज अ पुलिस ऑफिसर कम्स अक्रॉस such various range of human emotions which is unimaginable for common man. वेरियस रेंज, मतलब इतना खराब क्राइम भी आपको देखने को मिलेगा जो कभी आप सोच ही नहीं सकते. मैं कल की बुक में एक कहानी है, 11 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, एंड सरप्राइजिंगली जो मेरी ह्यूमन इन खाकी बुक है, जो बेटी है ना, जो वाइफ है, रेपिस्ट की जो वाइफ है, शी ब्रिंग्स द गर्ल टू द हाउस. कैन यू थिंक ऑफ इट? वाइफ इज ए को अक्यूज्ड, मतलब वो रेप करवा रही है अपने हस्बैंड से 11 साल की बच्ची का. तो ऐसे हमें देखने को मिलता है इमोशंस का रेंज. तो आप अपने आप यू आर मूव्ड सो मच ना, आपकी इमोशंस की डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि फिर अपने आप कहीं ना कहीं आपके अंदर से राइटर पैदा हो जाता है. Beautifully said. Amit Lodha, let's I'll hear add about. something more to this कि मैं IIT तो पहुंच गया, but I was not a brilliant IITian. I was one of those 6.1 IITians. Chetan Bhagat is my batchmate. So वो curricular, extracurricular, Extracurricular, beyond curricular चल but I रहा was था. doing only extracurricular activities there, Got tennis, it. tennis, squash, and all these kind of things. And I was a very shy person during my college days. And after IIT, when I was unemployed at home, when I was preparing for the civil services, my mom was very worried कि मेरे बेटे का क्या होगा. उन्होंने ज्योतिषी को दिखाया मेरी जन्म पत्री और जो भी होता है. तो ज्योतिषी ने बोला आपका बेटा क्राइम की दुनिया में बहुत नाम करेगा. तो उनको चिंता हो गई कहीं क्रिमिनल नहीं बन जाए. लकीली मैं IPS में आ गया और फिर मैंने बहुत क्रिमिनल्स पकड़े. और किताब की जो आप बात कर रहे हैं, सर ने बताया, ऑब्वियसली वी गो थ्रू अ होल गैमट ऑफ इमोशंस. इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, बट I told yesterday also, I'm repeating, because Chetan came up with 5 Point Somebody and 5 Point Someone and a few other bestsellers. I felt, that I could have also written something. And I got an opportunity. I was lucky that Penguin published my book, Bihar Diaries, and it became a huge bestseller. And then the second one. And now, nothing succeeds like success. Very So I've true. written a third book during the Corona last year, which has not been published yet, but still the OTTs and films have already lapped it up. So I'm very lucky, apart from my policing. But obviously, I always feel proud of being a policeman. That is my core identity. I always love to be in the uniform, and that is what I will always cherish. That is what, makes me very, very proud, very fulfilled as a human being. I really feel wonderful the moment I put on the uniform. Because I can do so much. I can bring instant relief, instant justice to so many people. And I actually get paid for my social service. So it's a wonderful service. In fact, like I was telling you, Amit, I saw the cover of your book, and there you are, like this Running. macho man, who's out to get the criminals. So I won't be surprised if in your next avatar you come in place of Akshay Kumar as as the cop hero. आपने I इसको think एक आइडिया और दे दिया, मतलब अनदर रेंज. मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट स्टेप होने वाला है. Let's see what happens. Now, मैं अपना कुछ अलग बताऊं. मैं IITian टर्न्स ऑथर नहीं हूँ. हाँ. मैं ऑथर टर्न्स बाय फोर्स IITian हूँ. मेरे होता हर घर में होता है कि बच्चा आदि लिखना शुरू कर दे. तो मैं 12-13 साल की उम्र से लिख रहा हूँ. और मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ कि कुमार विश्वास मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं. हम लोग साथ में कविताएं पढ़ते थे बुंदेलखंड में. पर घर का एक प्रेशर होता है कि कविता से पेट नहीं भरता, तो इंजीनियर बनना पड़ा मजबूरी में.
और उसके बाद इंजीनियरिंग बनना है तो फिर आईआईटी चले जाओ जब ढंग की जगह। तो दैट वाज द रीज़न, बट वो चीज़ वापस आती है जो आपके दिल के अंदर होती है। तो कई सालों बाद और वो क्यों क्राइम से आई, क्योंकि वो भी बाई फोर्स, मतलब बाई चॉइस आपको ज़िंदगी वहाँ ले जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ें दबी होती हैं। तो जब ये 26/11 का अटैक हुआ, मुंबई अटैक, और उसके बाद एक एनआईए करके यूनिट सेटअप हुई, उस समय एक आईजी साहब थे लोकनाथ बेहरा, उन्होंने मुझे बुलाया कि हमें कुछ ऑफेंसिव चीज़ें करनी है। बड़े केसेस किए उन्होंने उन्होंने बहुत। बड़े केसेस, वो डीजीपी अभी रिटायर हुए हैं केरला से, तो ही वॉज माई मेंटर एंड सीबीआई में भी रहे हुए। सीबीआई में भी थे उस। तो उन्होंने मुझे जब वो इंगेज करना शुरू किया तो मुझे पहले लगा कि कुछ टेक्निकल काम होगा, बट जब मैं क्राइम में घुसना शुरू हुआ तो पता पड़ा कि इट इज़ मच मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल गेम। किसी को भी हैक करना या ट्रैप करना या ल्योर करना या सोशल इंजीनियरिंग करना। तो फिर वो मैंने लिखना शुरू कर दिया, एंड दैट हैज़ हेल्प मी टू रिवाइव माई ओल्ड राइटिंग डिजायर्स। On a serious note, Ashok ji, I want to ask you, our topic is about enforcements and encounters. Why is it so difficult to enforce laws? Laws are there, but somehow enforcing it, and also the perception in the minds of the public, there is a dichotomy. तो ये क्यों है और इसको कैसे ठीक करें? आप बताएं. देखिए, पहले मैंने बोला कि एनफोर्समेंट सामान्यतः किसी को पसंद नहीं आएगा। Right. एनफोर्समेंट हमें उसके भी बहुत सारे रेंज हैं। जैसे एक ट्रैफिक का एनफोर्समेंट है, वो किसी बच्चे को पसंद नहीं आएगा। फिर यद्यपि उस लोगों की सुरक्षा के लिए, अगर हम ट्रैफिक एनफोर्स नहीं करेंगे तो सड़कों पे जाम लगेगा, एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्राइम के अगेंस्ट एनफोर्समेंट है, तो क्राइम के अगेंस्ट एनफोर्समेंट नॉर्मली ये वाला एनफोर्समेंट सोसाइटी पसंद करती है। बट यहाँ भी हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं जिनके बड़े लोगों के इंटरेस्ट हिट हो जाते हैं, माफिया काइंड ऑफ पीपल, तो वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट गैंग अप कर जाते हैं। फिर एक एनफोर्समेंट है हमारा, लेट्स से टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कोई इशू चल रहा है, भीड़ इकट्ठा हो गई, उसको हमें वो करना है, इंटर कम्युनिटी इशूज है, या जैसे उत्तराखंड आंदोलन था, ठीक है, मैं एसपी चमोली था उन दिनों। तो उत्तराखंड आंदोलन एक प्रकार से जन भावना थी, दे वांटेड कि हमारा नया स्टेट बने, 94 की बात। किंतु हमने कहा भाई इसमें ऐसे आपके सोच में कोई गलती नहीं है, बहुत सही है, हम आपके साथ हैं, किंतु आप कोई वायलेंस नहीं करेंगे। हम हर कस्बे गए चमोली जिले के, जो रुद्रप्रयाग भी उसी का पार्ट था, हर जगह पब्लिक मीटिंग की कि मैं आपके साथ हूँ एज एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मैं भी आपकी डिमांड के साथ हूँ, आपके सारे हम जो है भेज देंगे जितने ज्ञापन है राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, जहाँ से ये होना है, किंतु एसपी डीएम ने नहीं देना, आप अपने जिले की शांति व्यवस्था बना के रखें। सो मोस्टली अवर दिस एजिटेशन वाज पीसफुल। तो उसके अगेंस्ट भी कभी कभी हमें मतलब फोर्स यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सभी तरह के वेरियस काइंड्स ऑफ एनफोर्समेंट, उसके पीछे बहुत बहुत लंबे थॉट्स भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत हम रिस्ट्रेंट भी रखते हैं बहुत बार। तो वही है कि जो एनफोर्समेंट कई बार लोगों को पसंद नहीं आता बाय बेसिक नेचर ऑफ इट। Amit Lodha, you have been involved in various terrorist encounters. Tell us, what is the reality of encounters and what we see on the screen? How far are they true to real life? See, in a filmy encounter, when a hero shoots, all the bullets hit the target. In reality, more often than not, we miss our targets because, first of all, you know, you are so nervous and tense during that time. It's not that you're fearful, Yes, but that's so true. many things are happening at the same time. You know, I got a gallantry medal from the President of India for a brave act, but I think it was the most foolish act that I ever committed in my life. So there's a very thin line between foolishness and bravery in our profession. So it was an excellent encounter, and when I reached the place of occurrence where the firing was already on, I started crawling towards the hideout of the Naxalites. A few of my constables stood up. Probably they were tired or they were trying to be brave. Like a fool, I also stood up, assuming that the constables must be thinking that the SP Saab is a coward. And when I got up, two of my constables, naturally, they got hit by bullets. And then I realized what a stupid thing I'm doing. I'm an IPS officer, a trained officer. I started shouting at my constables. We all crawled, took the two injured constables out of danger, and ultimately we arrested the Naxalites. But just imagine, all kinds of silly things happen during that time. We have crossfires, and our rifles get jammed.
Then when I reached the hideout, I thought that I've arrested all the Naxalites. I sat on a, haystack, relaxed. And one of my constables, he was NSG trained. He put a bayonet on his rifle, AK-40s, and he started poking into the haystack. And two Naxalites are hiding under the haystack. Wow. And like a fool, I was sitting over that. My I had no goodness. qualms in admitting that that was the most stupid operation I ever, undertook in my leadership. And yet, since I was successful, I got a gallantry. Before that, I had done many brave things where I'd actually risked my life, done a lot of things. So it's a very touch and go kind of a thing. And but yes, we are very well prepared. We are professionals, and it's a part of life. Hazardous job it is. Our families are also put on danger at times. The book I've written, Bihar Diaries, I mentioned how my child was attacked when he was going to school. There was a bomb explosion. It all happened. It all happened in reality, and obviously my wife was shaken. And but then you have to carry on because I talked to my DG and I told him that, sir, I require some special protection. He said, you're the SP of the district, you have all the forces under your command, and he was absolutely right. Then I thought, okay, then I started going to the badminton court carrying an AK-47 with me. So after 2 days, the DM, the district magistrate who were my partners, they stopped coming to the badminton court because they were very worried. They were petrified seeing an AK-47 lying along with the badminton rackets. So this is a part of our job. And I am concerned about the safety of my family, at times about my own security also. But I'm not worried because it's a part and parcel of the job. I know very well that once you put on the uniform, this thing will happen. And I take great pride in remembering all my senior IPS officers because people often think that IPS officers do not lead from the front. They are armchair, analysts, or they just issue orders. But look at the Mumbai 2611 incident. Two senior IPS officers, Ashok Amte Saab and Hemant Karkare Saab, they lost their job. They lost their lives during that encounter. And highest respect for them. Then Tukaram Mumle, who snatched the rifle from that terrorist, Kasab. So these are wonderful incidents. And apart from that, so many of our unsung heroes, Jawans of CRPF, BSF, who lose their lives almost every day, but their lives, their deaths are just statistics for us in the newspapers. That's why we started an initiative called bharatkv.gov.in so that we can pay real homage to all these Jawans. And I dedicate both my books to all the unsung heroes, the policemen of India, policemen and women, who are faceless, who are nameless. And I really hope that the policemen get their due respect. We often talk about the negativity in the police department, but in my experience, at least 70-80% of the policemen and women are wonderful workers. They just need the right leadership and some kind of motivation. Sir has rightly said, they work under severe duress, almost 24 hours a day, away from their families, no incentives, nothing like that, and only a very difficult nature of job where the expectations are sky high. In no other government department do you expect instant results. Very In police, true. you require instant results. Anything, kuch nahi kar rahi police, kuch nahi kar rahi police. The police has to work through so many pressures, but still they deliver every single time. So I'm very proud of the police force. No, this is really commendable, and this reminds me of the words of the great author George Orwell, who said that we live in peace, we sleep in peace, because rough men are willing to do violence on our behalfs. So our salute to the men in uniform, seriously, who take care of our safety at all times. And I think Ashok ji मैं just would कुछ add like to say करूंगा। something. क्योंकि बिहाइंड द बैज है तो पर्दे के पीछे की कहानी आप जानना चाह रहे हैं तो जनरली परसेप्शन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो मीडिया का बनाया है चाहे मूवीज का बनाया है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सारे एनकाउंटर फेक होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनकाउंटर्स हमारे लाइफ की रियलिटी है। हो सकता है कुछ कभी कभी कुछ एक पे उंगली उठती है, जांच भी होती है, पुलिस वालों को सजा भी मिलती है, बट नॉट ऑल एनकाउंटर्स आर फेक। ये हमको सोचना पड़ेगा। मैंने कल बोला था, मैंने अपनी एक एनकाउंटर मैंने लाइफ में किया जिसमें 3000 गोली चली, 3000, 3 घंटे तक एनकाउंटर चला। तो ये भी है, ये भी सच्चाई है लाइफ की। That's true. Being a lady, I cannot resist this question. Women have been the inspiration for various kinds of, I would say, inventions and poems and epics. And here, amongst our panelists, although Amit Lodha told me he's a ladies' man, we'll come to that later during our telephone conversation. My question is directed at Amit Dubey, who is the country's foremost
cyber security expert only because of the feminine gender. Tell us, how did that happen? So we were discussing before the session. मैं कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं रिवील कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने मेरे से पूछा कि आप कैसे अचानक पुलिस स्टेशन कैसे आ गए। लोगों को डाउट होता है कि कैसे उनको पता पड़ा कि आपको कुछ आता है और उससे आप हेल्प कर सकते हो। तो मैंने कहा मैं आईटी में था, और आईटी में 2000 में, आप लोगों को पता होगा याहू, आप लोग बच्चे हो गए, 2000 में याहू मैसेंजर बड़ा पॉपुलर था। तो हर एक आदमी याहू मैसेंजर पर टक 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 लगा रहता था। लैब में हमारे लड़कियां बहुत चैट करती थी 7-7 8-8 घंटे तक। तो सारे लड़के मेरे से पूछते यार ये 8-8 घंटे तक बात क्या करती है इतना देर कोई क्या बात कर सकता है। तो मैंने कहा देखते ना, पता करते ना। तो मैंने एक याहू मैसेज उसका फिशिंग पेज बनाया याहू का, और हर एक सिस्टम पर उसको एज एन होम पेज सेट करता कि जब आप ब्राउजर लॉन्च करोगे तो मेरा पेज खुलेगा और आप लॉगिन पासवर्ड डालोगे तो वो लोकली सेव हो जाएगा, एंड देन यू विल बी लॉग्ड इन, सो यू विल नेवर गेट टू नो कि कुछ हुआ है। दिस इज द कॉमन हैकिंग टेक्निक। तो इस तरह से मैंने 16 लोगों के लॉगिन पासवर्ड निकाल लिए, जिसमें से 6 लड़कियां थीं, और एक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया ये लॉगिन पासवर्ड, नीचे कर्टसी अमित दुबे। अगले दिन पूरे कॉलेज में हल्ला मच गया कि ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे डिसिप्लिनरी कमेटी ने बुला लिया। उस समय आरवीआर, प्रोफेसर आरवीआर जो राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ही वाज डीन। उन्होंने मुझे आके डांटा कि भाई क्यों किया तुमने। मैंने कहा सर मैं तो टेस्ट कर रहा था कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो बोले फिर तुमने प्रिंट आउट लेके क्यों लगा दिया। मैंने कहा सर वो बताता कैसे, मैं एक एक को बताता जाके कि भाई तेरा पासवर्ड मैंने हैक कर लिया। तो उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए लैब से डिबार कर दिया और अपने साथ फोर्स किया कि तुम मेरे साथ काम करोगे मेरे क्यूबिकल में। और उन्होंने मुझे सिखाया, ही टॉट मी अ लॉट, मैनी हैकिंग टेक्निक्स ऑन उबंटू, लिनक्स, विंडोज। पर इसका फायदा ये हुआ, एक जो आप बोल रहे कि एक क्यूरियोसिटी की लड़कियां क्या करती हैं, कि जब 2008 में एनआईए सेटअप हुआ तो मेरा एक बैचमेट था जो आईपीएस ऑफिसर है जेएनके कैडर में, उसने मेरा नाम रिकमेंड किया क्योंकि सर को चाहिए था कोई हैकर। तो मैंने कहा सर एक अमित दुबे करके लड़का है वो कुछ भी हैक कर लेता है। सो दैट वाज द रीजन आई वाज इंट्रोड्यूस। यदि मैंने वो ना किया होता शायद तो मैं आज यहाँ भी नहीं होता। तो समटाइम्स कुछ ऐसी फुलिश चीज़ें जो हम अपने यंगस्टर्स यंग एज में कर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं डॉट कनेक्ट्स होते हैं लेटर। और आई एम श्योर अशोक जी भी हैं, अशोक इनका एक्सपीरियंस है, जब आपने पहले कभी कुछ किया होगा अब डॉट कनेक्ट्स होते हैं कि वो क्यों हुई थी चीज़ें, एंड देन यू रियलाइज कि देयर वाज सम रीजन। Some destiny. Amit Lodha, I want to ask you a question about a different kind of encounter. And that is your encounter with Lalu Prasad Yadav and Rabri Devi, which you have discussed, explained in your book Bihar Diaries. Tell us, how was that encounter? See, when I joined Bihar Cadre, I had just gone straight after IIT, had gone to the IPS and then Bihar. And I belonged to Jaipur, I studied in St. Xavier School. So totally different environments, different milieus. And when I joined Bihar, everybody told me that you must call on the Chief Minister of Bihar. So I was ASP Patna City, I went to his house, and before entering his house, I'd heard a lot of canards that he ill-treats people and this and that. किसी को खैनी बनाने के लिए बोल दिया, किसी कुछ. I heard a lot of things about that. And I thought, IPS officer को बोल देते हैं खैनी ये बनाने सुना के था मैंने, Okay. चर्चा ही नहीं थी, सुना था मैंने, और मेरे को लगा ऐसा कुछ मेरे साथ होगा, तो I will, resign from the service and lot many such things. But I reached the house and he was extremely polite, courteous, and a lot of things happened which I cannot say right now, but it was a different experience for me altogether. It's being recorded, otherwise I would have spoken about all those things. So I'm still a serving IPS officer, I cannot. But for that you can read my book, it's all written there and, with fictitious names. It was a wonderful experience. Very, very interesting. Right. So this session actually, we would have loved to have 2 hours, but we have constraint and there are more things that we have to do. So one question I would like to put to Ashok ji. Being a lady, I cannot help but be distressed by the increasing crimes against women. And especially during COVID, we saw increasing domestic violence. So the crimes against women covers the entire gamut, from domestic violence to gang rapes. तो अशोक जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये इंक्रीज हुए हैं कि डिक्रीज हुए हैं कि सेम हैं, क्या स्थिति है? मुझे लगता है कि जो इंक्रीज नंबर्स में तो इंक्रीज है ही है, विजिबल इंक्रीज है, जो हम लोग के डाटा जो होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें विजिबल इंक्रीज है इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। बट वो इंक्रीज के 2 फैक्टर्स हैं, आई वुड पुट इट लाइक दैट। फर्स्ट फैक्टर इज अवेयरनेस। लोग सामने आ रहे हैं, लड़कियां सामने आ रही हैं, लेडीज सामने आ रही हैं। पहले डरती थी,
पहले उनको लगता था मेरी बदनामी होगी, कि तुम्हारी बदनामी क्यों होगी, तुमने थोड़ी क्राइम किया है, तुम्हारे अगेंस्ट क्राइम हुआ है। इसके बावजूद आप कितने भी लोगों को देख लीजिए, वेदर दे आर विक्टिम ऑफ रेप और वेदर दे आर विक्टिम ऑफ टीचिंग, उस सबको यही लगता था कि मेरी बदनामी होगी। घर वाले मना कर देते हैं एफआईआर लिखवाने से, तो वो टैबू थोड़ा थोड़ा हट रहा है। तो इसलिए नंबर ऑफ केसेस, रिटन एफआईआर्स आर इंक्रीजिंग। दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन आई recently felt is, online. Everything is online, nowadays, including money transfers, including jobs, including education. So human relations are also now online. तो जितना ह्यूमन रिलेशन है वो फेसबुक और उससे इंस्टा से ड्रिवन है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी क्राइम जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब वो आपके साथ फ्रॉड और वो सारे केसेस बढ़ रहे हैं, साइबर बुलिंग के, साइबर स्टॉकिंग के, साइबर फ्रॉड्स के, और उसमें वुमेन भी उसके विक्टिम बन रही हैं, लड़कियां वीमेन। तो वो भी एक फैक्टर है।